عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بیٹھے تھے تو ایک بندہ سائل آواز دے رہا ہے، آپ نے اس کی ضرورت پوری کی، وہ پھر آواز دینے لگ گیا، میں بلاؤ، دورے سے اس کی خبر لی، اس کی تلاشی لی تو بے شمار مال تھا، فرمایا صدقے کے اونٹوں کو کھلا دو، عام اونٹ کو نہ کھلانا۔ اسلام نے پیشہ ور بھکاریوں کی مذمت کی ہے، نہ کہ تعاون۔ اسلام کا نظام عجب ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے تو پہلے زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ نکالنے کے لیے، عشر ذمہ داروں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ ذمہ دار بھی ہیں ہم، ہمارا خاندانی تاجر بھی ہیں اور درویشی بھی ہے، اس کو تلاش کریں، تحقیق کریں کہ میرا کتنا مال ہے۔ آج تک خواتین اپنے زیور کا زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور کی، ہائے ہائے، اور اگر ہم سارے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے، میرا ایک خیال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے دینا کس کو ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار، وَالْیَتَامَىٰ، یتیم، وَالْمَسَاکِین، نہایت مفلس، وَابْنِ السَّبِیل، پردیسی، مسافر، کوئی۔ سب سے پہلا درجہ کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اور عجیب بات بتاؤں، امام غزالی فرماتے ہیں وہ رشتہ دار جس نے ساری عمر تجھے تیرے خاندان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور تو اس کو اپنا مال اس انداز سے دے کہ اس پہ احسان نہ جتا، پھر کیا دے گا؟ اس پہ وعدے بتاؤں آپ حیران ہوں گے، یہ میرا ایک روحانی پیکج ہے۔ آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں پھر میں یہ پیکج بتاتا ہوں۔ میں تو اس کیفیت میں حکیم صاحب چلا گیا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی رسوا کرے، خراب کرے اور سخت اس کا رویہ ہو تو حکم ہے اس پہ بھی آپ نے مہربانی کرنی۔ کیا بات ہے! اور وہ رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے، شریک ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہے، اس نے ساری عمر آپ کے خاندان کو رسوا ذلیل کیا، اور میرے پاس اس کا ایک ایسا پیکج ہے جس سے بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، مسائل، مشکلات اتنا جاتی ہیں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، ایک فرمان۔ دوسرا فرمان ہے 70 مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے، مفہوم ہے۔ اور میرے حضور کا تیسرا فرمان ہے کہ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے، جو تقوی چاہتا ہے، جو نیکی چاہتا ہے، اور جو کہتا ہے اللہ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے کفن میں یہ گناہ نہ جائے، اور میرا مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ صدقہ اس کے لیے بھی ہے، لیکن صدقہ دیں کس کو؟ جو کپڑا لگا دے اس کو دے دیں، جو بکسہ رکھ دے اس کو دے دیں۔ تحقیق سب سے پہلے وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار، اور وہ جنہوں نے ساری عمر ذلیل کیا پر ہیں غریب، ہیں واقعی مستحق۔ میں ایک بات عرض کروں سید بادشاہ، صدقہ تو سارا، زکوٰۃ، عشر، خیرات، صدقہ، یہ تو ساری ہے ہی تلاش ہے۔ ہاں، پہلی تلاش یہ ہے کہ میرا بندہ کتنا ہے، ایسے نہیں اٹھا کے دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری تلاش یہ ہے کہ دینا کس کو ہے۔ واہ، بہت خوبصورت، دو تلاشیں ہوں گی، تلاش ہے۔ اور اگر ہم نے تلاش کو چھوڑ دیا پھر دیں گے بھی مصیبتیں نہیں ہٹیں گی، پریشانیاں نہیں ہٹیں گی۔ پہلے وہ تلاش ہے۔ سہارنپور میں ایک صاحب تھے، بہت رئیس تھے، اور ان کے ہاں لوگ امانتیں رکھواتے تھے، موٹی دیواریں ہوتی تھیں تو اس میں ایک تاک تھا، چور رات کو آیا، سردیوں کی رات تھی، اس نے چھوٹا سا تالا تھا 1.5 آنے کا، اس کو توڑنا شروع کیا، ان کی آنکھ کھلی، رضائی سے ایسے دیکھا نا چور تالا توڑ رہا، کہتا ہے بھیا میں نے اس کی زکوٰۃ دی اور پوری دی ہے، جو توڑنا ہے توڑ لے، پھر رضائی لے کے سو گئے۔ اللہ اکبر، چور کوئی بے حیا تھا۔ اچھا، صبح تک توڑتا رہا، صبح اٹھ کے پاؤں پڑ گیا، معاف کر دیں اور مجھے توبہ بھی کرا دیں، پر یہ بتائیں آپ کا مال اور آپ کو اتنا یقین کہا میں نے تلاش کی تھی، زکوٰۃ کو پورا کا پورا پوچھ کے دیا تھا، اب میرے مال کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا۔ اور کہیں تو واقعہ سنا دو؟ ضرور ضرور ضرور۔ دلی میں ایک انگریز کام کر رہا تھا اپنے دفتر میں، بہت بڑا تاجر تھا، نوکر مسلمان بھاگتا ہانپتا آیا کہ بنگلوں کو آگ لگ گئی اور ہمارے بنگلے کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا کا رخ اس طرف ہے، پلٹ رہی ہے، اس خاموشی سے لکھتا رہا۔ اس نے پھر ادھر سے آ کے کہا، انہوں نے کہا سر بنگلوں کو آگ لگ رہی ہے، ہمارے بنگلے کی طرف آگ آ رہی، کوئی بچاؤ کر لیں۔ توجہ نہیں کی۔ 3-4 دفعہ کے بعد پتہ کیا کہا، اور وہ لفظ کہا جو کائنات کا آخری لفظ ہے، میں کہتا ہوں کہاں انگریز نے ہے، اچھا، پر کہیں کمال بات ہے، اللہ اس انگریز کو جزائے خیر دے۔ میں حقیقت کہوں گا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا، ہم تو مسلم غیر مسلم سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا چپ کر کے جا کے بیٹھ جا، میں نے اپنے پورے مال کی مسلمانوں کی طرز پہ زکوٰۃ دی ہوئی ہے،
एक, और अपने पूरे माल को फिर ऐसे गरीब रिश्तेदारों पे खर्च करता हूँ जो ज़रूरतमंद खामोश हैं। और आग उसके बंगले के करीब पहुंची और बुझ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम तलाश नहीं करते। सही। क्या राय आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। तलाश का थोड़ा सा मतलब भी बता दीजिए कि एक है टो लगाना, ध्यान रखना, नज़र रखना, नोज़ डिप करना भी इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इस तलाश को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए हकीम साहब, ये किस तरह की तलाश है? सैयद बादशाह, रिश्तेदारों का बड़ा पता होता है, कौन किस हाल में है, कौन किन हालात में है, कौन किन क्राइसिस में है, ज़वाल उरूज में है, उन पे नज़र रखना। अगर वो आपका माल नहीं लेते गैरत की वजह से या गुस्से की वजह से, दो लफ्ज़ हैं, गैरत, खुददारी या गुस्सा, तो आप उन्हें किसी दूसरे हाथ से दें और हाथ भी अमानतदार हो जो पहुंचाए। यह तलाश है, तरीका है। जब बंदे को लग जाती है फिर वो रास्ते तलाश कर लेता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, एक और इसी में एक जुज़वी सवाल बन जाता है। बाज़ औक़ात ज़रूरत किसी को गंदम की होती है और हम चने दे के खुश हो रहे होते हैं, यानी सखावत तो कर रहे होते हैं और रेलिवेंट नहीं होती वो मदद, रेलिवेंट नहीं होती। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी मदद जो उसकी ज़रूरत भी हो, ये कितनी ज़रूरी है? ये भी तलाश है ना। आपको हालात की खबर है तो आपको पता चलेगा कि इसको आपको कपड़े की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। और सबसे बेहतरीन ज़रूरत खुद नकदी है। सही। नकदी से वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर गया। आप खाना भी देना चाहते हैं तो आपको अगर उसकी हालात की खबर मेरी होगी, खबर होगी। मैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक पैकेज बता रहा था, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ठीक, इजाज़त हो? जी जी ज़रूर। जो अपने रिश्तेदारों को माल देगा और तलाश करके देगा और इज्जत और वकार उनका मजरूह ना हो, ये बड़ी ज़रूरी है। इज्जत नफ्स जलील करके नहीं। फरमाया वो ऐसी ऐसी बलाओं से बचेगा जिस बलाओं को टालने के सिर्फ अल्लाह की ताकत ही और कोई नहीं ताकत है, और ऐसे हादसों से बचेगा जिनसे उसकी हड्डियों के 70,000 चूरे हो जाएं, और ऐसे नुकसानात से बचेगा। और कहा कि जो चाहता है उसकी नस्लें लूली, लंगड़ी, अपाहज, पागल, दीवानी, बीमार, परेशान ना हो, तो वो ऐसे सदका दे रिश्तेदारों को तलाश करके। और फरमाया जो चाहता है कि उसके वो मसले हल हो जाएं जिसकी चाहत को लेके शायद वो कब्र में चला जाए, तो वो सदका, ज़कात, खैरात, उशर उन लोगों को दे जो तलाश करके दे, सही हकदार हो और खामोशी से दे। क्या बात। और फरमाया जो ये चाहता है कि तवंगरी उसकी नस्लों से ना जाए, ये पैकेज बता रहा हूँ, आपने देखा होगा बाप मालदार था, औलाद एकदम खाली हो गई या पोते खाली हो गए। मुझे एक साहब बताने लगे, लाहौर के एक रईस आज़म थे, कहने लगे मेरे वालिद उनके यहाँ मुलाजिम थे, 16,000 की गाड़ी मेरे वालिद को 0 मीटर खरीद के दी। उस दौर में 16,000 की गाड़ी, और वो 100 का नोट देते थे। उनकी लाइन 3 दिन तक नहीं टूटती थी, हर बंदे को 100 का नोट दे रहे हैं। अल्लाह। और आज लाहौर की एक गुमनाम बस्ती में वो घर रह रहा है और लोगों की मदद पे है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। उसकी एक वजह है, हमने तलाश नहीं किया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी बरकत नस्लों में जाए, दौलत, रिस्क वाफिर जाए, तो फिर इस रिस्क की तलाश करें, अपने ज़कात, सदकात, अतियात की। आपकी नस्लें मालदार होंगी, आपकी जागीरें, आपकी ज़मीनें, आपका रिस्क कभी नहीं छिनेगा, आपका हमेशा सरसब्ज़ और शादाब और बीमारियां ख़त्म होंगी। हकीम साहब, हमारे माशरे में इदारे बेशुमार हैं जो चंदा मांग रहे हैं, यानी ये एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका है। एक मिजाज को हम कभी कभी दोस्तों में बैठ के डिस्कस करते हैं, उसका इस नतीजे पे हम दोस्त पहुँचे हैं कि उसका ताल्लुक उम्र, एजुकेशन, ओहदे, रुतबे के साथ नहीं है, बैगर होता है। कुछ लोग होते ही बैगर हैं, यानी वो किसी भी हाल में हो उन्होंने मांगना होता है। इदारे भी बैगर बन चुके हैं, डब्बा, कोई तिजोरी, कोई ख़जानची ऐसी छोटी सी चीज़ पड़ी है जिसमें डालना है। ये इदारों को देना ये ठीक नहीं है क्या? शाह जी, बात वहीं तलाश पे आती है। अगर आपके पास अपने ज़रूरतमंद हैं, मसलन मैं हूँ ना, मेरे पास सारा दिन दुखियारे गम के मारे आते हैं और मेरी तलाश आसान है। क्यों? मुझे वो लोग वो मसाइल बयान करेंगे जो आम पर्दा देंगे, ठीक है, अपने पर्दे रखेंगे, ठीक है जी, ठीक। वो ये लोग कहाँ से मिले आपको जो अपने पर्दे आके खोलें? क्योंकि मैं मुआलिज, रूहानी जिस्मानी छोटा सा मुआलिज हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर इंसान
के ऊपर या तो किसी को यकीन है कि वो 100% ऐसा है, ठीक, एक बात है, वरना मेरी दरख्वास्त ये है अमूमी तौर पे कि अगर हम दाएं बाएं नज़र रखें, और एक मेरी दरख्वास्त सबसे है आपकी, इस सड़कों पे मांगने वालों कई लोग ऐसे हैं, मुझे आके बताया कि उनके बहुत बड़े बैंक में माल पैसे, चौराहों पे ये बाबे माइयाँ चीज़ें, सच पूछें 1% नहीं 1 करोड़ फीसद ज़रूरतमंद नहीं है ये। हाय हाय हाय, ये हक मार लेते हैं फिर तो। हक मारते हैं उन लोगों का जो बेजुबान है, जो सवाल नहीं कर सकते और अपनी जो है गुर्बत को छुपाए खुददारी के नाम पे। बेजुबान मांगने वाले का पता लग जाता है कि ज़रूरतमंद है, ये इसको देना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है ना सच्चा, वो सड़कों पे नहीं आएगा। ठीक है, कमाल है, सड़कों पे कहाँ आएगा? बिल्कुल ठीक है, खुददारी की वजह से। खुददारी है, इज्जत नफ्स है। उसके लिए आप जैसे मुखलिस हों, जो मुझे रोज़ उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, क्या तो तलाश है। आज का जो बुनियादी मैसेज है हकीम साहब, मैं तो उसको थोड़ा सा बता इसलिए देता हूँ कि जो मैं समझ पाया हूँ कि हम सबको आज से ही अपने करीबी रिश्तेदारों ध्यान देना चाहिए, तलाश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उनकी पहले मदद करनी चाहिए। ये राह खुदा की बारी कितने नंबर पे आती है? अल्लाह की राह में अगर देना, ये तरतीब ज़रा बता दीजिएगा हकीम साहब। मैं अर्ज़ करूँ? जी जी। और ये साथ भी अर्ज़ करूँ कि एक दुर्वेश फरमाते हैं, रान का गोश्त काटें अपनी रान का, उसका कीमा बनाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, फिर भी राज़ी नहीं होंगे। ये पहले बता दो। आप कहें कि आपके माल पे राज़ी ना हो, तो इसका मतलब फिर आप रिश्तेदारों को राज़ी कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर। अच्छा, राज़ी रब को करना है। हाँ, अल्लाह के लिए देते जाए, लुटा अपनी हस्ती भला करते करते। वाह वाह वाह। तो मैं आपकी तरतीब फिर अर्ज़ करता हूँ। वबिज़िल कुर्बा, सबसे पहले रिश्तेदार, वल यतामा, और यतीम भी ऐसे जिनका कोई वारिस ना हो, वो भी ज़रूरत, बहुत तलाश की ज़रूरत है। सही। वल मसाकीन, और मसाकीन से मुराद वो है जो अब से पहले मालदार था, अब ज़वाल याफ्ता हो गया है। वाह। मेरे आका ने फरमाया, मफ़हूम है उस शख्स को तवज्जो देना जो मालदार था, अब उसे सब कुछ तकदीर ने लूट लिया, छीन लिया। और चौथा, परदेसी, मुसाफिर, कोई ऐसा। लेकिन पहले रिश्तेदार, और मैं समझता हूँ अगर आप अपने रिश्तेदार, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो रिश्तेदारों के मकान बनवा देते हैं, जहेज देते हैं, अच्छा, उनको बाइक लेके देते हैं, अच्छा, उनके वो सारा निज़ाम रिश्तेदारों पे करते हैं, हत्ता कि अपना माल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों को पता है कि ये रिश्तेदारों पे और ज़रूरत सही पे खर्च करेंगे, उन पे खर्च करते हैं। क्या बात। रिश्तेदार वाकई होते हैं, सही, और ऐसे होते हैं जिनको आप जैसे मुखलिस चाहिए। बिल्कुल सही। एक बड़ा ज़िमनी सा सवाल है, और मैं इस सवाल की पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। बाज़ औक़ात ये सवाल लोग कर देते हैं, ये सवाल ख़्याल की शक्ल में उठ जाता है। माल देते हुए, कुछ खैरात करते हुए, ये सोचना चाहिए कि अब मुझे ज़रब खा के मिलेगा? ये सोचना चाहिए कि सोचना भी नहीं चाहिए, गर्ज से भी आज़ाद हो जाना चाहिए, देते रहना चाहिए और अल्लाह करम कर देता? अगर गर्ज से आज़ाद होते तो अल्लाह ने पैकेज क्यों रखे थे, 10 दुनिया 70 आखिरत। अगर गर्ज से आज़ाद होते तो अल्लाह ने फिर क्यों रखा कि माल से ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा, ये ऊंची सोच है जो आप बता रहे हैं, और सही सोच है। ठीक है, ऊंची सोच है। देखें, एक है तकवा, एक है फतवा। ये तकवे की सोच है, ठीक हो गया। और फतवे की सोच क्या है कि अल्लाह को दे रहा हूँ, अल्लाह देगा, और उम्मीद रखें। उम्मीद हुई उसी करीम से रखेंगे, और किसे रखेंगे? वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बड़ी उम्मीदों का महवर मरकज वही रब है। बेशक।